घांची भी हैं, घांची भी हैं। घांची ये भी गुजराती है मेरे ख्याल में। घांची। हाँ, घांची एक ज़बान है सही। मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करके। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करो, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है सपुत्रा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सपुत्रा। इस वीडियो का टाइटल है मारी नजारे गुजरात सपुत्रा डंग डिस्ट्रिक्ट। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ક્યારે કલ્પના કરી છે કે સ્વર અચૂક લેવી. માં ગુજરાતની અમુક જગ્યાઓ અનહદ ખૂબસૂરત થઈ જાય છે. જેમ જેમ સફર આગળ વધે તેમ તેમ થાય કે જાણે સાક્ષાત જન્નતમાં એન્ટ્રી પડી રહી છે. કંઈક આવું જ થયું જ્યારે મેં ડાંગ જિલ્લાની મુલાકાત લીધી અને શરૂઆત કરી સાપુતારાથી. જ્યાં રાત્રે પહોંચી ત્યારે વાદળોએ તો જમીન ઉપર ઉતરીને સ્વાગત કર્યું હતું. સાપુતારાના સનરાઈઝ પોઈન્ટ ઉપર જાઓ ને ત્યારે સન જોવા મળે કે ના મળે, પણ વાદળો સાથે રમતા પર્વત અને આકાશનો અદ્ભુત નજારો ચોક્કસથી જોવા મળે. નસીબદાર હોય છે એ લોકો જેને પર્વત ઉપરથી પડતું ઝરણું જોવા મળે, પણ ખુશનસીબ હોય છે એ લોકો જેને પર્વત ઉપરથી પડતું વાદળોનું ઝરણું જોવા મળે. એમ થાય કે આ સફેદ ચાદરમાં આળોટી આવો. कमाल है यार, बहुत आला। ये किसी अलग की प्रॉपर्टी है, वो अलग प्रॉपर्टी। अच्छा, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए कि बंदा वो स्लिप ना हो जाए किस कारण से। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, ये देखिए कहीं कहीं ब्राउन। ગુજરાત की आंखों का है तारा સાપુતારા. આ લાઈન તમે ખૂબ સાંભળી હશે. એનું કારણ તમને સાક્ષાત આ વિડીયોમાં જોવા મળશે. अनटच होता है ना, जो वो ग्रीन होता है, वो ग्रीन होता है, वहाँ उगी हुई है। આ આખા વિડીયોમાં હું અને મારી વાતો થોડી ઓછી હશે, કારણ કે ડાંગ જિલ્લાની દરેક ફ્રેમ કરવા માંગે છે તું ને તારી વાતો. घर देखे वही रिवायती टाइप के। महिंद्रा की टेबल व्यू पॉइंट। વર્ગનો અહેસાસ લેવો હોય તો તમારે છે ને ગવર્નર હિલ પર આવવું પડે, જેને ઘણા બધા લોકો ટેબલ વ્યૂ પોઈન્ટ પર કહેતા હોય છે. ઇટ્સ એક્સ્ટ્રીમલી બ્યુટીફુલ. सरसों के फूल है। ગુજરાતમાં ચોમાસા સમયે તમે જાઓ તો ઠેર ઠેર તમને કમરક ખાવાનો મોકો મળી જાય. સ્વાદમાં ખાટું મીઠું લાગતું આ ફળ તમને હાઇડ્રેટેડ રહેવામાં બહુ હેલ્પ કરે. बारिशें बहुत होती हैं यहाँ। टाटा की है। ચોમાસામાં વરસાદથી ભરાઈ જતા સરોવરનું નામ છે સર્પગંગા સરોવર. આમ તો અત્યારે તમને અહીંયા સાપ
जैसे ही दिखता है ना, अच्छा नहीं तो लगता। वो जो क्यूटनेस होती है। ડિટેલ બુકમાં જોયેલ ચિત્રને ભૂલાવી દે એવી જગ્યા એટલે સાપુતારાનો સનસેટ પોઈન્ટ. મારી ડિક્શનરીમાં એકે એવો શબ્દ નથી જે આ સુંદરતાને ન્યાય આપી શકે. अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही करीब से फेस दिखा, ये देखो अच्छा ये चीज़ें आप नोटिस તે દોડતી જિંદગીમાંથી શ્વાસ લઈને સાપુતારાના સનસેટ પોઈન્ટ ઉપર બેસે તો એવું લાગે કે જાણે બસ સમય અહીંયા રોકાઈ ગયો છે. देखो, अभी भी गुजारा कर रहे ड्रेसिंग बहुत अच्छी करती है, अट्रैक्टिव। हैं। आप देख रहे हैं? રાતરાણીને પણ એક સમયે સવારે મહેકવાનું મન થઈ જાય એવું વાતાવરણ હોય છે સાપુતારાની સવારનું. અહીંની દરેક ફ્રેમમાં છુપાયેલો છે અમારો પ્રેમ. આ સુંદરતા માટેનો પ્રેમ, આ હરિયાળી માટેનો પ્રેમ, આ રસ્તા માટેનો પ્રેમ, આ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જેવી વાઇબ માટેનો. ये देखिए, ये अब आसमान देखे आप। ये टाइम लैपिंग, टाइम ये पूरा मट्टी लेके आता है, बाढ़ आती है ना जब। હિન્દી ફિલ્મનો કોઈ સીન ચાલતો હોય એવું દેખાય છે મારું ગુજરાત, સ્પેશિયલ ચોમાસામાં. આવાના રસ્તા તો પૂછો નહીં ભાઈ, કેટલા બ્યુટીફુલ. 2020માં છે ને મારે પેરુ જોવું હતું, પણ ડાંગ જિલ્લો જોયા પછી એમ થયું કે મારું અમેઝોનનું જંગલ તો અહીંયા જ છે. રસ્તામાં આવતા યુટર્ન પોઈન્ટ જોઈને સીઝન ટ્રાવેલર તો સમજી જ ગયા હશે કે આ સવારી નીકળી પડી છે ગિરમળા ધોધ તરફ. तो नहीं हमने वीडियो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। गुजरात की प्लेसेस कैसी हैं? डांग डिस्ट्रिक्ट गिरिमाल वाटरफॉल। સેકન્ડ માટે તમને પણ એવું લાગ્યું ને કે જાણે ચાનું ઝરણું છે? अच्छा बनता है डिफोकस गया बस। ऐसा बना हुआ નસીબદાર હતી હું કે વરસાદ માણવાનો મને મોકો મળી જ ગયો આખરે. બાકી 2020નું ચોમાસું તો ખાલી ઘરના ધાબે જ માણવા મળ્યું હતું. દરેક જિલ્લામાં એક ધાર્મિક સ્થળ એવું હોય જ જેની મુલાકાત વગર ટ્રીપ અધૂરી કહેવાય. આ એ જગ્યા છે જ્યાં શબરી માતાએ એકે એક બોર ચાખીને શ્રી રામને આપ્યા હતા. કેમ કે ક્યાંક એમના વાલા રામને ખાટું કે કડવું બોર ના આવી જાય. એ મીઠા બોર વાળી જે વાર્તા તમે સાંભળી હશે ને, એ જગ્યા એટલે કે શબરીધામ. शबरी धाम हो सकता है, ये भी हो सकता है कि रेयर में અહીંથી એક્ઝેક્ટલી 6 કિલોમીટર્સની દૂરી ઉપર આવેલું છે પંપા સરોવર. માતંગ ઋષિ જે શબરી માતાના ગુરુજી છે એમનો આશ્રમ અહીં આવેલ છે. કહેવાય સરોવર, પણ પાણીનો ફોર્સ તો જુઓ બાકી. ये चीज। अच्छा रोड देखें, अपने आप में जेड बराबर। हाँ, मैं उसकी बुराई करे जा रहा हूँ, ये खुश हो जा रही है।
તમને મહાલ ઇકો કેમ્પ સાઇટની અંદર ટ્રેડિશનલ ટ્રાઇબલ કમ્યુનિટીવાળા હટ જોવા મળશે. તમને એમ થાય કે આદિવાસી હટમાં યાર રહેવા મળે તો રહી શકો છો ઇકો કેમ્પ સાઇટમાં. આ કેમ્પ સાઇટમાં ટ્રેલ્સ છે, ટ્રી હાઉસ છે, ટ્રેકિંગ, એડવેન્ચર એક્ટિવિટીઝ જેવું ઘણું બધું છે. ધ બેસ્ટ પાર્ટ ઇઝ ધ સાઉન્ડ ઓફ પૂર્ણા નદી. ખળખળ વહેતું એ પાણી અને ચારે બાજુ છવાયેલી શાંતિ, સાથે સાથે ડાંગી લોકોની ક્રિએટિવિટી. ટ્રાઇબલ કમ્યુનિટીની ભાષા તમને સમજાય કે ના સમજાય, પણ એમણે બનાવેલા વારલી પેઇન્ટિંગને જુઓ ને તો એમનો ભાવ ચોક્કસથી સમજાય. ગીરા ધોધની એન્ટ્રી પાસે છે ને તમને અત્યંત મહેનતથી બનેલા બાંબુ આર્ટિકલ્સ જોવા મળશે. શોપિંગનો કીડો હોય ને તો અહીંયા અમુક શોપીસ બહુ સરસ છે. આખરે દિવસ આવી ગયો જ્યાં સફરનો અંત. અમે આવવાથી લગભગ 30 કિલોમીટર દૂર આવેલા ડોન હિલ સ્ટેશનની મુલાકાતથી કર્યો. મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત બોર્ડરની એક્ઝેક્ટલી વચ્ચે આવેલું છે ડોન હિલ સ્ટેશન, જે મોન્સૂન અને વિન્ટરમાં તમને એક અલગ જ દુનિયામાં હોવાનો અહેસાસ અપાવે. કુદરતના ખોળામાં છે ને આળોટવાનું મન થઈ જાય ને એવી જગ્યા એટલે ડોન હિલ સ્ટેશન, જેને જોતા જ મનમાં મને એમ થયું કે યાર આવનારા દિવસોમાં જે પણ કોઈ આ જગ્યાની મુલાકાત લે એ બસ ખાલી એને સાચવી રાખે. ડાંગ જિલ્લાની મુલાકાત દરમિયાન એટલું સમજાઈ ગયું કે પ્રકૃતિને ખાલી મજા લેવાના અર્થે મુલાકાત લેતા લોકો આપણા માટે સજા બરાબર છે. પણ જો એક રિસ્પોન્સિબલ ટ્રાવેલર બનીને મુલાકાત લઈશું તો આ બ્યુટી વર્ષો સુધી આ જ રીતે સચવાયેલી રહેશે. जी जनाब. अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जगह बहुत खूबसूरत. सबसे ज़्यादा मैं तारीफ़ उस चीज़ की करूँगा जिन्होंने ये वीडियो बनाई है. इनकी कैमरा मैनिंग की, कैमराग्राफी की, एडिटिंग की, डीओपी बता देते ना, डीओपी की. उसकी वजह ये है कि आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपने वो फीलिंग पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाए, कैप्चर नहीं कर पाए, तो फिर वो आपका इतना दूर जाना, इतनी खूबसूरत जगह को मुझे लगा डिस्कवर. आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार पहाड़ों के ऊपर से आबशार बहते हुए देखे बादलों के. ये बहुत यूनिक चीज़ थी. मतलब ये वो चीज़ थी जो जो यूं मेरी नज़रों से पहली बार गुजरी. मैंने अब तक की लाइफ में ये पहली बार, ये नज़ारा पहली बार देखा है. अच्छा, एक चीज़ और है कि सामने वाला जब तक आपको खुश नहीं दिखता, एक अच्छी जगह पे पहुंच के वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तब तक आपको फील नहीं आता. तो मैंने देखा है कि ये जो एंकर हैं, जो गुजराती में बात कर रही होती है, हमें
2-4 लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ समझ में आ जाता है, 2-4 लफ्ज़ों में से, अच्छा। ठीक है ना, मतलब व्लॉगर्स ब्लॉगर हैं। हैं। तो इसका मैंने ये देखा है कि ये जिस तरीके से फ़ील कर रही होती है ना, तो इनका फ़ील करना हमें फ़ील कराता है और हमें अच्छा लगता है। ये एक अपना इस तरह के व्लॉग हमने नहीं देखे। मुझे एक पता है, मुझे इनके एक्सप्रेशंस देखकर लगता है कि इनके नज़दीक सबसे बड़ी बात, सबसे फ़ख्र की बात और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि ये गुजरात को एक्सप्लोर कर रही है। बिल्कुल और ऐसे। गुजरात इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती ये अपने चेहरे से आया कर रही होती है। बिल्कुल कि ऐसा मैं ही। क्या क्या फील कर रही हूँ और वो कितना खूबसूरत है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने पिछली किसी वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, अगर ड्रोन ना होता, अभी तक इजाद ना हुआ होता, तो शायद हम इतनी ज़्यादा नेचर की ब्यूटी नहीं देख पाते जिस तरीके से। अच्छा ड्रोन Overall एक तो है ना वो, हाँ। अच्छा एक तो ड्रोन है, दूसरा तफाक ये है कि ड्रोन बहुत आम किसी के पास भी हो सकता है। एक होता है ना कोई ख़ास चीज़ होती है, 40-50 लाख रुपए का ड्रोन आता है और वो किसी के पास है, तो कोई जाके वीडियो बना सकता है, तो हर हम किसी के बस में तो हम इतनी खूबसूरत जगहों को कैप्चर नहीं कर पाते। लेकिन ड्रोन एक बहुत ही मतलब अफोर्डेबल चीज़ है और अच्छा ड्रोन भी आपको इतने महंगे नहीं मिलते। इन बजट मिल जाते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से मतलब कॉमन हो गया है और बहुत से यूट्यूबर्स अब ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह से हमें नेचर की, कुदरत की इतनी खूबसूरत जगह देखने को मिलती अच्छा, है। मैं शॉर्ट्स में ये सोचती हूँ कि शॉर्ट्स चले ठीक है, ड्रोन है, चले ठीक है, खूबसूरत जगह है, चले ठीक है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि शॉर्ट्स को लेना भी आना चाहिए। यही। एक्सपीरियंस, अपना दिमाग लगाना, इतनी मेहनत करना, अपना टैलेंट दिखाना बड़ी बात है कि मतलब हर कोई नहीं कर सकता। अब देखिए ड्रोन भी वही बात है, जिसको नाचना है आंगन टेढ़ा, जिसको चीज़ें ना चलानी आए, जिसको पता ही ना हो कि कैसे लेना है, जिसको पता ही ना हो कि किस तरीके से कैप्चर करूँगा या करूँगी तो बहुत खूबसूरत आएगा और व्यूवर्स जो देख रहे हैं वो इससे जुड़ पाएंगे, वो इसको फील कर पाएंगे, इसकी खूबसूरती को, तो तब तक बेकार है। मैं कहूँगी इसमें टैलेंट भी शामिल है, इसमें मेहनत भी शामिल है कि इतनी तरीके से शॉट्स को लेना। आपने देखा मैंने तो कई बार ये भी देखा कि एक शॉट को कई तरीके से लिया गया है, बिल्कुल ऐसा ही कि है। हर तरीके से आपको दिखाया जाए ताकि आप इंजॉय करो, ताकि आप लुत्फानंदोज हो जिस तरीके से वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं हर एंगल से। हर एंगल से। अच्छा, एक और चीज़ है, बारिश को देख के बहुत अच्छा लगा और बारिश इन दिनों में हम भी कराची में बैठ के फील कर रहे हैं। दिन रात बारिशें हो रही हैं, रुक रही है, फिर अच्छा मानसून जो है ना, हमारे यहाँ मानसून बेहतरीन किस्म का चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुंबई में, महाराष्ट्र में भी मानसून का मौसम चल रहा होगा। मुंबई में चल रहा है। हाँ, वहाँ पे भी बारिशें मैंने एक दो अच्छा वीडियोस देखी थी। अच्छा, बारिशें यहाँ की इतनी ऐसी अजीब हैं मानसून की कि कभी है, कभी नहीं है, कभी धूप है, कभी बारिश है। और कराची शहर में ऐसा हो रहा है, आजकल तो डेली हो रही है ना, डेली हो रही है, लेकिन लगातार हो रही है, कई घंटे हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, कहीं धूप में हो रही है। और ऐसा भी है, कराची इतना बड़ा हो गया है शहर, इतना मतलब आबादी हो चुकी है, इतना फैल चुका है कि कराची के किसी इलाके में बारिश है तो किसी में नहीं है, तो किसी में है तो किसी में बादल है, बादल टुकड़ों में घूम रहे हैं। एरियाज में डिफरेंट मौसम है। अच्छा, ऐसा है कि एक शख्स कह रहा है सर मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, हमारे यहाँ तेज बारिश हो रही है, जबकि वो सच कह रहा है। अच्छा, बॉस बैठा हुआ है, अबे पागल बना रहा है क्या, धूप निकली हुई है तो। अच्छा, अब ये पता चल रहा है कॉल की वजह से, फ़ोन की वजह से कि भाई वहाँ हो रही है वाकई। फिर दूसरे से सुना, तीसरे से सुना। तो इन दिनों में कराची में बारिश है और कराची के आसपास जितनी भी ज़मीन है जो वैसे पड़ी हुई होती है, वहाँ पे ग्रीनरी हो चुकी है। एक ऐसा व्लॉग भी देखा, एक बंदे ने बनाया गडाब की साइड पे कि वहाँ पे एक डैम है, टूटा फूटा हुआ बेकार डैम है, सिर्फ बारिश के दिनों में वहाँ पानी बहता है आबशार की तरह। ऐसा लगता है कोई पता नहीं कौन से इलाके सिर्फ बारिश का पानी गिरता है वहाँ पे उन दिनों में। वहाँ पे एक रास्ते में एक जगह पड़ती है, एक रोड है आधा किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का, पूरे रास्ते में दरख्त, वाओ, खुद से उग गए। मतलब वो उस इलाके के लोगों ने लगाए हुए, लेकिन इस वक्त इतनी ग्रीनरी हुई है, उस वक्त इतना खूबसूरत माहौल बना हुआ है कि वो ग्रोथ ऐसा लग रहा है कि अगले बंदे कह रहे हैं कराची के अंदर कश्मीर, यहाँ तक के जुमले यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि वो रोड में जब गुजर रहे हैं तो आसपास दरख्त और ग्रीनरी और वैसे बारिशों का मौसम है तो हम बेचारे तरसे हुए लोग, हमें तो थोड़ी सी ग्रीनरी मिल जाए तो बस हमारा गुजारा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों ने छतों पे गार्डन बनाए होते हैं, शाम पार्क में निकल आते हैं और इसी वजह से मतलब छोटी सी भी ग्रीनरी। अच्छा, ये थोड़ा सा कभी हमने सोचा या नहीं सोचा है, ग्रीन आँखों को अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। ग्रीनरी को हम कहते हैं जन्नत। तो क्या जन्नत इस तरह की होगी, मतलब ग्रीन होगी, क्या होगा मतलब?
मतलब हमारे दिमाग में हमारे मतलब आप सब्जा को कह रहे हैं कि आंखों को वो अच्छा जन्नत का नज़ारा पेश करता है, तो क्या जन्नत में भी वाकई हमें ये देखने को एक तो ये मिलेगा, चीज़ हो दिलकश गई। नज़ारे? दूसरी चीज़ मैं ये सोचता हूँ कि क्या सबको ही ग्रीनरी अच्छी लगती है? सबको मतलब ये अच्छा, एक होता है किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को बराबर, नहीं। मतलब किसी को मेरा क्या आज तक जितने लोगों से पाला पड़ा है सबको ग्रीनरी पसंद है। मुझे तो लगता है नेचर का हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है, इंसान की, हर इंसान की। हर किसी को अच्छी तो लगती ये ऐसा कुछ हमारे दिमाग में, हमारी आंखों में ऐसा कुछ है कि हमारी आंखों को इससे अच्छा लगता है, फील अच्छा आता है, अच्छा। ठंडक महसूस होती है, और ग्रीनरी जो है ये ऑक्सीजन से भरपूर होती है, है। तो इस वजह से इंसान को अच्छा फील और होता भी है। अच्छा फील होता है। और मैंने देखा है जब आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, अगर आप उसके इर्द गिर्द घूमते हो या वॉक करते हो, थोड़ा सा मतलब चहलकदमी करते हो, तो आपको बड़ी फ्रेशमेंट फील होती बिल्कुल, है अपने बिल्कुल। आप में ही। बिल्कुल पता नहीं ऐसा। शायद आप वहाँ पे ब्रीथिंग कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि ऑक्सीजन बड़ा तरोताज़ा होता है वहाँ पे, कुछ ऐसी वजूहात रहती होंगी कि मतलब आप बड़े स्ट्रेस फ्री फील करते हो अपने आप को। बिल्कुल। अब देखें नॉर्मली लोग पूरे काम वगैरह से फारिग होकर रात में लाजमी पार्क जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो वहाँ पे ग्रीनरी होती है, उनको अच्छा लगता है, थोड़ी देर लेटते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो वो हल्के फुल्के हो जाते हैं। तो मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है ग्रीनरी शायद आपको तरोताज़ा रखने का भी एक जरिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग था, बहुत ही अच्छा लगा, और गुजरात जो है गुजराती में था। बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, और गुजराती में था। अच्छा, ये गुजराती में था, इसका सबटाइटल भी नहीं था। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है हम 20% तो गुजराती समझने लग गए। अच्छा, कराची में, पाकिस्तान में, खासतौर पे कराची में सारी कौमें जो है ना, थोड़ी थोड़ी आबादी ज़रूर है। हाँ, गुजराती भी हैं, मेमन भी हैं, कच्छी भी हैं, घांची भी हैं। घांची, ये भी गुजराती है मेरे ख्याल में। घांची। हाँ, घांची एक ज़बान है, सही। मेरे ख्याल में ये भी गुजराती होंगे शायद। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।